Yes, sir. Okay. So here we are going to perform supply planning. So till now, what do you understand? Uh, will you just let me know what is the flow of the data in the supply chain management? We get the data from the S4 and S4 HANA and ECC, and we Okay. use that data for demand planning. Hmm. We create the demand, and Hmm. then the data, the output from the demand goes to inventory, Hmm. and the output of the inventory helps to meet the supply series. Okay. Yeah. Okay. So what happened for this supply series? Inputs will be from demand and inventory side. Okay. Demand and inventory side. So what are the master data we are going to maintain here for supply planning? First of all, I will let you know what are the things in the supply planning. We have certain algorithms. Normally we are using heuristic algorithm. Okay. So there is a finite heuristic and infinite heuristics. Okay. So these are the two algorithms which are peculiarly and on and majority we are applying this thing. Okay. So here what happened? Finite associated with constant planning, and it is associated with unconstant planning. Understood? Here constant means parameter, unconstant means without considering parameter. Okay. Supply planning needs supply chain at a mediocre level. Chain starts from customer but will come from supplier side. Supplier to whom? Plant to warehouse to DC to customer. Okay. This is your supply chain. Within that supply chain you have certain subunits. Those subunits you are calling it as a planning units. Here for any supply operation you need prerequisites are what? Demand and inventory. Okay. And inventory. Now again, what is the another thing? Master data associated with supplier planning are: first,
product master data, then customer master data, location master data, location product master data, then customer product master data, then resource master data, then sub network master data, or it can be called as LAN unit, then transportation source, sorry, location source master data, then customer source master data, then production source master data, then you have production source resource production item master data. This production source resource is also known as production header master data, and this okay, got it? This much of master data. Have you created any one of this master data till now? I think yes. Yes, we have created product, customer, location. I think Hmm. customer product is also there. Yeah. Location product is also there. So your main task here is to maintain the another master data. Okay. So what are the input key figure you will have? Input key figures for supply will be dependent demand, independent demand, total demand, net demand. Consensus will be the same, okay, or you can keep consensus as a input from demand side. So demand, that is a total demand only. I am just skipping here. And then you have this demand, delivered quantity, non delivered quantity, late delivered. All these things we are not going to maintain. This is for your understanding purpose. I am making you know. Okay, we will use only the mediocre level key figures to have our output, to process our output. Then you have quantity, late delivered quantity, uh, confirmed quantity, on time delivered quantity. Okay, like this. Then you have outputs as projected stock. Okay, then you will have supply, then you will have receipts. So can we So make a separate column for them, or yes, so that? yes, 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 yes. Okay.
Okay, so these are the things. So receipts may be of any type. You can mention as a customer receipts, transport receipts, likewise, or production order receipts. Okay, now scenario for constant supply planning. Example. So what is the example? Your company is going to manufacture manufacture what you are going to manufacture? A fan. Testing is to be performed for the capacitor performed for the capacitor level. You are not from a technical side, no? Are you aware of resistor and the capacitor what you are utilizing in the fan? Capacitor is, I know, Okay, not from I the am technical taking point of another. view, but I I am know taking. it's a device that is No, used in no, fan. no. Technically, if you don't know, 1 meter. Anything constant. Huh. Your company is going to produce bangles. No, bangles. Are going to produce anything. Samosa. Okay. Samosa. Okay. So, company needs to understand their capacity to fulfill the demand of the customer. So what will happen then? They will. So Alt and Enter would make it work. Otherwise, the line Okay, will go okay, 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 extendedly. okay. Control and Enter. Yeah, yeah. It's alt or enter. It's Control and Enter, if I'm not wrong. नहीं हो रहा. Alt and Enter. No issues. Just, No just a issues. No second. issues. Yes, now you can. I'm not understanding from this point. Okay, leave it. Okay. Sir, it's Alt and Enter, but the other Alt on the left hand side. Yep. Got it. Consider
certain parameter. Okay, so those parameter will be time, lot size, then sourcing ratio, then resource availability, then quota, then what is there, data, then transportation, lead time. Okay, there are certain parameters, only some few parameters I have mentioned here. Okay, so what do you understand from this point? If your company is going to produce certain product, okay, for that particular product you need to understand what is the capacity of your company to fulfill the customer demand. So if you are working very wisely, then what you will do, then you will consider certain parameters. First of all, you will look after the time, how much time you will require to fulfill the demand. Then second thing, what is the lot size, how much lot size you are able to quench over there. Then what is the sourcing ratio, then how many resources are being available over there. Then what is the resource availability, do you have a proper manpower in order to fulfill the customer demand at that particular time or not. Then you have quota, any quota you have reserved for those particular thing, or the transportation later means what is the exact time you will require in order to fulfill the customer demand, so as to make your delivery on time. Okay, so these are the certain points you are considering in the constant planning. So this is coming under the heuristic. Heuristic means anything which is being calculated by using any parameter. Okay, meaning of heuristic. Then unconstant. Supply planning. Supply planning without considering the parameter when a company tries to perform production activity in order to understand the full or optimum capacity of the optimum capacity of what, of the Demand. production Oops. unit in order to fulfill demand. Got it? So okay, understood what I mean to say here? Okay, sir. एनी कोर आइडिया यू आर गेटिंग, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, कुछ आउटलाइन समझ में आ रहा है Yes. आपको? देखिए, जब Yes. आपकी कोई कंपनी है या आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो होता क्या है कि आपके पास में डिमांड आती है, और डिमांड के लिए सप्लाई क्या पार्ट है, सप्लाई इज़ नथिंग, सप्लाई इज़ टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस। क्या मैं गलत हूँ या सही हूँ? वी वॉन्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस। ओके, तो Okay. कंटिन्यूटी का ही मतलब सप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि सप्लाई बस कस्टमर को ही किया जाता है, सप्लाई इंटरनली भी होता है विद इन कंपनी। सप्लायर के तरफ से जब मटेरियल आता है उसे भी हम सप्लाई की एक्टिविटी भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल मोटिव जो हमारा होता है, डेट इज़ इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द कस्टमर। ओके, तो जब कस्टमर के डिमांड को फुलफिल करना होता है, तो यहाँ पे हमारे पास में सर्टेन, मैंने आपको बताया कि हम लोग कुछ पैरामीटर कंसिडर करते हैं। तो पहली बात क्या है, हम लोग मास्टर डेटा कौन से यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये प्रोडक्ट मास्टर डेटा आप देख चुके हैं, कस्टमर मास्टर डेटा आपको मालूम है, ओके, लोकेशन मास्टर डेटा भी मालूम है। प्रोडक्ट मास्टर डेटा में क्या क्या आएगा मैडम? यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी, यहाँ पे कस्टमर आईडी आ जाएगी, ओके, यहाँ लोकेशन आईडी आएगी। एग्रीगेटेड पैटर्न में मैं नहीं जा रहा हूँ, बस आपको जो सिंपलेस्ट उसका है, जो आइडेंटिफायर है उसे मैं लेके जा रहा हूँ। फिर आपके पास में यहाँ पे लोकेशन आईडी भी है और प्रोडक्ट आईडी भी है,
फिर यहाँ पे आपके पास कस्टमर आईडी भी है और प्रोडक्ट आईडी भी है। फिर यहाँ पे आपके पास में रिसोर्स आईडी भी है। ओके। फिर यहाँ पे आपके पास में सब नेटवर्क है। सब नेटवर्क का मतलब सब नेटवर्क आता है आपका। सब नेटवर्क आपको पता है। ओके। पता है या नहीं पता है? प्लानिंग यूनिट रहता है आपका। फिर आपका लोकेशन सोर्स होता है। लोकेशन सोर्स इज़ नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन। ठीक है। तो लोकेशन के साथ में प्रोडक्ट का जब कॉम्बिनेशन होता है, से लोकेशन कस्टमर के साथ, यहाँ पे कस्टमर के साथ में प्रोडक्ट का और लोकेशन का और जो कॉम्बिनेशन होता है वो वाला। और फिर प्रोडक्शन सोर्स, प्रोडक्शन सेंटर, ये प्रोडक्शन, इसको हम लोग वर्क सेंटर भी कहते हैं। वर्क सेंटर जहाँ पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे उसका सोर्स में लोकेशन आ जाएगा, प्रोडक्ट आईडी आ जाएगी। ठीक है। और अगर एसोसिएटेड कस्टमर तो कस्टमर आईडी सर, भी आ इनके जाएगी। अलावा भी तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं मास्टर डेटा में, तो बिल्कुल हमें वो होते कब मेंटेन हैं, बिल्कुल बिल्कुल होता है। मैं जा रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ। मैं आपको अभी जो करना? चीज़ हमारे पास में है मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ। पहले आप लेआउट समझ ओके। जाओ, फिर हम मास्टर डेटा में सेपरेटली जाएंगे। ठीक है। और उसमें भी हमें सब चीज़ मेंटेन नहीं करनी पड़ती अभी के लिए, क्योंकि ये जो सप्लाई प्लानिंग है ये पढ़ाने के लिए बस आपको लग रहा है कि ये पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। सप्लाई प्लानिंग के लिए जो डेटा मेंटेन किया जाता है ना मैडम, वो बहुत भारी होता है। ओके। बहुत ज़बरदस्त डेटा चाहिए रहता है उसमें। इतने सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, आप देखोगे लोग ऐसे ही वहाँ पे 5-5 6-6 साल सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीखने में नहीं लगाते हैं। ओके। इसलिए मैंने कहा ओके। कि अगर बैकग्राउंड अगर होता है ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, तो यहाँ टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के रूप से बात करने में दिक्कत नहीं आती है। ओके। तो जैसे अभी आपका बैकग्राउंड वहाँ से नहीं है, तो मैं आपको एक मेडिकल लेवल, ये मेडिकल लेवल में ही ठीक चलेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हम कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारा डेटा मेंटेन करना पड़ेगा जो रियल टाइम पे ही पॉसिबल है। ठीक है। बाकी इधर प्रोडक्शन आइटम में कंपोनेंट आईडी वगैरह रहता है, कंपोनेंट आईडी। और इधर प्रोडक्ट आईडी। ओके। और डाबला एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहता है, वो लिखेंगे हम लोग। ठीक है। तो और यहाँ पे सोर्स आईडी भी रहेगा आपका हमारे, सोर्स आईडी भी रहेगा। और फिर और कौन सा है, रिसोर्स आईडी भी मेंटेन रहेगा। रिसोर्स कॉम्बिनेशन रहते कंपाउंड मॉडरेटर। ठीक है। इस टाइप से रहेगा। हाँ। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे इतनी सब चीज़ें मेंटेन है। ओके। तो एटलीस्ट आपको ये मास्टर डेटा तो पता होंगे, मतलब ऑन एंड जनरल, मैं डीप में नहीं पूछ रहा हूँ। ऑन एंड जनरल समझ में आ गई ये मास्टर डेटा क्या क्या है। जब आपने सप्लाई चेन बनाया तो कुछ समझ में आया उसमें आपका डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। यस सर। ओके। तो उसके बाद में यहाँ डिपेंडेंट डिमांड, ये सब की फिगर्स है। ठीक है। ये कोई इतने, ये सब इनपुट है और ये सब स्टोर्ड की फिगर्स है। इसमें से कोई भी कैलकुलेटर नहीं है, ये सब स्टोर्ड के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ये सप्लाई वप्लाई ये सब आता है कैलकुलेट, रिसिप्ट भी होती है कैलकुलेटेड। प्रोजेक्ट स्टॉक भी होता है कैलकुलेट। बाकी यहाँ पे आप जितने भी देखेंगे ये सब स्टोर रहेंगे। ठीक है। ये सब स्टोर रहेंगे, क्योंकि ये डेटा हमारे पास में आता है, इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। ठीक है। अब मैं जो कहने जा रहा था आपको, आपके पास में कांस्टेंट सप्लाई प्लानिंग होती है और अनकॉन्स्टेंट सप्लाई प्लानिंग होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अनकंस्ट्रेंट सप्लाई हाँ, प्लानिंग को हम क्या कहते हैं सर? अनकॉन्स्टेंट को हम इनफाइनाइट कहते हैं। इसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। ओके। इसे हम इनफाइनाइट कहते हैं। इनफाइनाइट का मतलब इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी मतलब कितना भी हो सकता है। और कांस्टेंट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट ह्यूरिस्टिक्स। गॉट इट। फाइनाइट, सॉरी, ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है। और ये इसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट ह्यूरिस्टिक्स। लाइकवाइज। तो जो मैं बताना चाहता हूँ उसकी थीम समझ में आ रही है आपको, मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। जी सर। ठीक है। तो ये थीम है इसकी, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने लायक तो है नहीं। ठीक है। तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे
तो यहाँ पे बस वही है कि जब हमें फुल कैपेसिटी पता करनी रहती है, सपोज मुझे मैं जो मेरा जो प्रोडक्शन यूनिट है उसकी मुझे कैपेसिटी नहीं मालूम है, तो क्या करूँगा मैं? सबसे पहले आप जब पंखे देखते हो ना, घर में जो पंखे बनाए जाते हैं, ठीक है, जी। जब पंखे बनाए जाते हैं ना तो उनमें पंखे को हम लोग रेगुलेटर्स वगैरह लगाते हैं, तो रेगुलेटर क्या करता है? स्पीड को लिमिट करता है, ठीक है। अब हम्म। आप मुझे बताइए, आप पंखे को स्टार्टिंग में रेगुलेटर लगाएंगे या फिर आप उसकी फुल स्पीड पहले पता करेंगे और फिर रेगुलेटर लगाएंगे? फुल स्पीड के बाद ही लगाएंगे। तो फुल स्पीड जो आप चेक करते हो ना, उसकी उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी क्या है, वो अटमोस्ट फाइनल जो उसकी फाइनल स्पीड कितनी है, ओके। बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग यू विल कीप अ बार्स इन बिटवीन, ओके। दैट रेगुलेटर इज नथिंग बट इट्स अ लिमिटिंग क्राइटेरिया विच टेल्स यू योर लिमिटेशन, अंडरस्टूड। ओके। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज हैज़ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, ओके। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज बोलते हैं, है डेफिनेटली है, ओके। सपोज अभी जो मैं चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ आप भी खुद से भी कर सकते हैं, ओके। बट हम्म। वाई आई एम देयर? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल what I will do, I will perform the unconstraint, I will check you that what is your capacity, आपकी फुल कैपेसिटी में चेक करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लिमिटिंग बैकग्राउंड में डालूंगा, आपको लिमिट करूँगा एट वॉट पॉइंट यू हैव टू लिमिट, ठीक है। क्योंकि लिमिटिंग पैटर्न में कोई भी चीज़ बेहतर लगती है या फिर एक्सेप्टेबल होती है, ओके। तो हम अनकंस्ट्रेंट जब परफॉर्म करते हैं तो अनकंस्ट्रेंट में हम लोग पहले फुल कैपेसिटी जो होती है उस प्रोडक्शन यूनिट की वो पता करते हैं। तो उस समय ना ये लीड टाइम, ये लॉट साइज, सोर्सिंग रेशियो, रिसोर्स अवेलेबिलिटी, ये सब चीज़ इनको किसी को कंसिडरेशन में नहीं लेता, वो सीधा चला देता है। फिर आपके पास में चीज़ें अवेलेबल हो नहीं हो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो ये बस आपको फाइनल आउटपुट जो देता है, ये फाइनल आउटपुट आपको समझ में आ गया। अब जब वो फाइनल आउटपुट आपको समझ में आ गया तो आपको पता चल गया कि नहीं, इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी 1000 लीटर की है, 1500 लीटर की है। अब आप क्या करोगे? अब आपके पास में जो रिक्वायरमेंट है 200, 300, 400 ऐसे में रिक्वायरमेंट है, तो अब क्या करोगे हम्म। आप उस हिसाब से आप मैनेज करोगे। आप पहले टाइम को मैनेज करोगे, आपका लॉट साइज है उसको मैनेज करोगे, आप अपने रिसोर्स को मैनेज करोगे, जो सोर्स लोकेशन पे आपकी जो इन्वेंट्रीज वगैरह अवेलेबल है आप उसको मैनेज करके देखोगे, आपके पास में कितने जो मैन पावर अवेलेबल है आप उसको देखोगे, किसको डिप्लॉय करना है किसको नहीं डिप्लॉय करना है उसको देखोगे। आप कौन सा आप जब ट्रांसपोर्टेशन के लिए जब जाएगा आपको फुलफिल करनी कोई किसी डिमांड, जब सप्लाई फाइनली ट्रांसपोर्टेशन करना है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आप लीड टाइम को आप जस्टिफाई करोगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जोमेटो या स्विगी पे आपने ऑर्डर कर दिया, एट द फाइनल टाइम आप बोल रहे हो कि बस यू रिक्वायर ओनली 15 मिनट्स और आपका बंदा आ रहा है 1.5-2 घंटे बाद, फिर तो आप झगड़े करने पे आ जाओगे, ओके। सो दीज आर द थिंग्स which we are framing or which we are limiting in order to have a proper क्या बोलेंगे सीक्वेंस्ड आउटपुट, अंडरस्टूड राइट नाउ, उसे हम ओके। ह्यूरिस्टिक कहते हैं, ओके। बस ये इतना पार्ट है। अब आपको जाना है अब मास्टर डेटास पे, ठीक है। अभी जो मैंने मास्टर डेटा बोले हैं वो मास्टर डेटा मेंटेन करने हैं। ओके। हम्म? तो आप कर लोगे मास्टर डेटा मेंटेन? सर दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि उसमें कौन कौन से ओके, हाँ। एट्रीब्यूट्स को मेंटेन करना है, आप दैट। आप मुझे दिखाओ एक बार मास्टर डेटा, कौन से एट्रीब्यूट्स मेंटेन करने बता दो। मैं ये कर रहा हूँ। एक काम कीजिए, अभी थोड़ा इसे थोड़ा थोड़ा रुकिए, आप एक बार वेब बेस्ड प्लानिंग पे जाइए, इस पे जाओ, सर्वर पे जाओ एक बार, आपको टाइम सीरीज बेस्ड ह्यूरिस्टिक का जो पार्ट है वो बता देता हूँ वहाँ कैसे दिखता है क्या है। सर्वर पे जाओ। सर।
वो जो टाइम सीरीज सप्लाई प्लानिंग कॉन्फ़िगरेशन है उस पर क्लिक कीजिए। ओके, क्या क्या दिया है इसमें? फोरकास्ट कंजम्पशन दिया है। क्लिक करो एक बार, क्लिक करो क्लिक करो, एक एक देखते जाओ क्या क्या है। इनपुट देखो क्या क्या दिया है उसमें। कंसेंसस डिमांड क्वांटिटी एज ए इनपुट फोरकास्ट लिया है। इनपुट सेल्स ऑर्डर हम्म। एज ए ओपन ऑर्डर लिया है। ओपन ऑर्डर ये सब ये है आपके ओपन ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह, ये सब क्या है आपके स्टोर की फिगर है। ओके, फिर उसके बाद में आउटपुट क्या ले रहा है वो? फोरकास्ट ओपन आउटपुट ले रहा है और टोटल डिमांड आउटपुट ले रहा है एज अ आउटपुट। ओके, एट्रीब्यूट क्या क्या मेंटेन किए हैं? कस्टमर आईडी, लोकेशन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये बेसिक एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। उसके बाद में फोरकास्ट कंजम्पशन मोड आपका जो भी है मास्टर डेटा जो आपने मेंटेन किया हुआ वहाँ पे, तो यहाँ पे कस्टमर सोर्स का कस्टमर सोर्स को लिया हुआ है इसमें मास्टर डेटा टाइप। फिर कैलेंडर कोई ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन। इस प्रकार से आपको कंजम्पशन मोड आपको तैयार करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको की फिगर्स मेंटेन करने होंगे। ओके, वो सब बताता हूँ मैं आपको की फिगर्स उठा। अब पीछे जाओ, टाइम एग्रीगेशन प्रोफाइल देखो। यहाँ पे इनका डेटा डे और वीक लेवल पे इन लोगों ने एग्रीगेशन किया हुआ है, और वीक में भी इन लोगों ने कैलेंडर वीक को एक्सेप्ट किया है, तो उसमें एग्रीगेशन स्टार्ट ऑफसेट दिया है 7 का। ओके, तो इसी कोई ज़रूरत है नहीं, वैसे इसी कोई ज़रूरत नहीं है। पीछे जो ये आता है मेन चीज, क्लिक करो ऐसे नो पे ऑपरेटर पे। ठीक है, किसी पे भी क्लिक करो एक बार, जो भी बना हुआ है क्लिक करो। हाँ, हम्म, अभी देखिए यहाँ पे 4 पैरामीटर्स दिए हुए हैं: जनरल इन्फॉर्मेशन, प्राइमरी पैरामीटर, लिमिट्स फॉर द मैसेज और एडिशनल पैरामीटर। ओके, अब इसमें प्रोसेसिंग मोड दिया हुआ है। ठीक है, देखो ये प्रोसेसिंग मोड है। अब ये सब चीज़ें रियल टाइम बेसिस पे काम करती हैं, हम लोग यहाँ पे रियल टाइम बेसिस पे कोई काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो रियल टाइम बेसिस का मतलब क्या होता है? हमारा ऑन प्रीमाइस से डेटा आते रहता है, और उसे हम अब जैसे बैच जॉब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। बैच जॉब में क्या होता है? डेटा ऑन प्रीमाइस से आते रहता है, मास्टर डेटा हो या ट्रांजेक्शन डेटा हो, वो आते रहता है, तो हम वो प्रोसेसिंग मोड बैच पे रखते हैं और उसे स्केड्यूल करते हैं। इंटरैक्टिव का मतलब क्या होता है? जब रियल टाइम में डेटा आपके पास में आ रहा है तो आप बीच में आप देख पा रहे हो उस चीज़ को, आप थोड़ा सा इंटरवीन भी कर पा रहे हो। और इंटरैक्टिव और बैच में क्या होता है? आप इंटरैक्ट भी कर पा रहे हो और बैच को डिटेक्ट भी कर पा रहे हो, कौन से बैच से आ रहा है, और बीच में अगर आपको लग रहा है आपकी बैच कहीं पे फेल हो रही है, तो आप बीच में जाके उसमें मॉडिफाई करके उसे रीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हम यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हमारे पास में ऑन प्रीमाइस का जो सर्वर रहता है वो रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बस एग्जांपल समझने के लिए रखा जाता है। ओके, उसके बाद आप टाइम प्रोफाइल मैनेज करते हैं। तो टाइम प्रोफाइल जो भी आप मैनेज करते हैं, अब देख लीजिए आपका डेटा आपको अगर वीक लेवल पे मेंटेन करना है, आपको जिस भी लेवल पे मेंटेन करना होगा उस लेवल पे आप देखिए। ठीक है, वो कर सकते हैं आप। उसके बाद में या फिर इंक्लूड फुल प्लानिंग पीरियड से, इंक्लूड फुल प्लानिंग पीरियड्स को आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके जितने भी प्लानिंग पीरियड है वो सबको कंसिडर कर लेगा। ठीक है, लेकिन आप स्पेसिफाइड हो गए वहाँ पे वीक में, इसलिए वो वीक दिखाएगा आपको। फिर आपको प्राइमरी पैरामीटर्स आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अब जो ह्यूरिस्टिक्स है, ह्यूरिस्टिक्स में मैंने आपको कहा क्या क्या है आपके पास में? इनफाइनाइट, विदाउट शॉर्टेज। ओके, मैंने कहा आपको पहले कैपेसिटी को जब चेक करेगा तो विदाउट शॉर्टेज, वो चेक नहीं करेगा कि आपके पास 2 या 3 रखे हैं, वो सीधा 50 का 50 रन कर देगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है उतना। आपने क्या बोलते हैं, जो डिमांड इनपुट डिमांड आई है 50, तो 50 की 50 बना देगा। वो ये भी नहीं देगा कि आपके पास में अवेलेबल इनपुट्स कितने अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद में आता है सप्लाई प्रोपोगेशन। ये रियल टाइम बेसिस पे है, इसे आप नहीं परफॉर्म कर सकते। फाइनाइट ह्यूरिस्टिक आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो दिखाऊंगा मैं बाद में आपको। फिर अलाउड कोटा डेविएशन। कोटा का मतलब होता है कि हम लोग सर्टेन कोटा मैनेज करते हैं। कोटा मतलब होता है कि आप कितना कोटा दे रहे हो। कोटा मतलब होता है कितना लॉट आप असाइन कर रहे हो किसी चीज़ को। ओके, तो जैसे प्रोडक्शन यूनिट के लिए सपोज मैंने 50% 30% ऐसे कोटा मैनेज करके रखा हुआ है, तो वो उन सब चीज़ों को देखेगा। और उसमें ऑप्शन दिया है स्टॉप विथ एरर। तो स्टॉप विथ एरर का मतलब है अगर बीच में कहीं पे एरर डिटेक्ट होती है तो सडनली वो स्टॉप हो जाएगा, वो रन नहीं होगा। ओके,
उसके बाद में वार्निंग मैसेज, अगर वार्निंग पे क्लिक करोगे तो जब भी आपको वार्निंग चाहिए वो मैसेज के तौर पे दिखा दिया जाएगा। फिर इंक्लूड ज़ीरो इन द कोटा चेक। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने कोटा में कुछ मैनेज नहीं किए हैं और उसमें सपोज ज़ीरो नहीं है और ब्लैंक है, वो चीज़ नल है वहाँ पे, तो वो चीज़ को क्या होगा, वो स्किप कर देगा। लेकिन अगर आपके ज़ीरो वहाँ पे डिटेक्ट होते हैं, कोई वैल्यू ज़ीरो डिटेक्ट होती है कोटा में, तो वो उसे भी चेक करेगा। अगर आप उसे चेक मार्क करेंगे तो वो उसे भी डिटेक्ट करेगा। फिर उसके बाद में नॉर्मलाइज कोटा है, वो काम का नहीं है क्योंकि वो हाई लेवल की प्लानिंग पे यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ सप्लाई वैलिडिटी है, तो ये वैलिडिटी एस्पेक्ट जब बड़े बड़े हमारे पास में ये आते हैं, आपने देखे होंगे वहाँ पे कुछ मास्टर डेटा आपको दिखे होंगे, लोकेशन सोर्स वैलिडिटी मिले थे उस वक्त जब हम चेक कर रहे थे एक बार, मास्टर डेटा मैनेज कर रहे यस। थे उस समय। ठीक है, तो यस सर। वैलिडिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं कि मेरा एग्रीमेंट बना है सामने वाले के साथ में, और मेरा जो सोर्स ऑफ सप्लाई की वैलिडिटी होती है, मतलब वो कब तक की उसका जो सोर्सिंग है, क्योंकि हम लोग हमारे पास में प्लानिंग कैलेंडर होता है, वो कैलेंडर में बताया जाया रहता है कि हमारा एग्रीमेंट सामने वाले के साथ में कितने दिन का बना हुआ है। तो लाइकवाइज उसकी वैलिडिटी होती है, और वो वैलिडिटी मतलब उतने सर्टेन पीरियड तक के वो चलते रहेगा। और एक बार आप यहाँ पे जब कोई डेटा कॉन्फ़िगर कर देते हैं ना, तो आपको वापस यहाँ पे आके देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली चलते रहेगा, वो स्केड्यूल हो जाएगा, लगातार चलते रहेगा। और इसे हम एक ही बार मेंटेन करते हैं, बार बार मेंटेन नहीं करते हैं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल हमको लगता है इन बिटवीन की हमारे रिक्वायरमेंट वाइज, तो उसके बाद में हम मॉडिफिकेशन जरूर करते हैं। फिर डिसेबल सब्सटीट्यूशन ऑफ लोकेशन प्रोडक्ट, ये काम का नहीं है आपकी। कंसिडर आइसोलेटेड प्लानिंग ऑब्जेक्ट्स, ये डेड एंड लेवल का है। जब आपके बड़े बड़े प्लानिंग लेवल्स बने हुए रहते हैं और उसमें आइसोलेटेड प्लानिंग ऑब्जेक्ट है, उस समय आप कंसिडर करेंगे। इंक्रीज टाइम एक्यूरेसी, ये भी अभी कोई काम का नहीं है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो, स्क्रॉल अप करो, ऊपर जाओ। अब यहाँ पे आपके पास में पैरामीटर्स दिए हुए हैं। ठीक है, अब जब आप कोई सप्लाई हो गया या कोई भी चीज़ रन करेंगे, तो आप इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, जब आपका सिस्टम बूटिंग में होता है, आपको कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग समझ में आती है। जब आपका सिस्टम जब इनिशियलाइज होता है, तो शुरू में कंपनी का लोगो दिखता है, और बीच में बहुत प्रोसेसिंग क्या हो जाती है, जो बायो सिस्टम वाली जो प्रोसेसिंग चलती है। ओके, तो वो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस होती है। तो इनिशियलाइजेशन का प्रोसेसर होता है वो बाइनरी सिस्टम जो रहता है ना, कंप्यूटर की जो बाइनरी लैंग्वेजेस है, उनके अल्गोरिथमिक पैटर्न को वो डिटेक्ट करता है। उसी हिसाब से जब हम सप्लाई को रन करते हैं, तो ये जब इनिशियलाइज होता है तो पहले वो लीड टाइम को देखेगा, लीड टाइम हॉरिजन को देखेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज लीड टाइम हॉरिजन ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट का जो मैंने लीड टाइम मेंटेन करके रखा है उसके हिसाब से रन होगा। अगर मैंने इनिशियलाइज लीड टाइम हॉरिजन ऑफ द कस्टमर रिसिप्ट, जो कस्टमर की रिसिप्ट में जो लीड टाइम मेंटेन किया हो रहेगा, ये उस हिसाब से रन होगा। ओके, और कंप्यूट एक्सपेक्टेड, तो सप्लाई फॉर द ट्रांसपोर्ट एक्सपेक्टेड मतलब इसमें क्या होगा, जो आपकी जो एक्सपेक्टेड है कि सपोज मेरे पास में इतनी चीज़ अवेलेबल है, इतना ही रन होगा। सपोज आपके पास में 50 अवेलेबल है तो 50 रन करेगा। ठीक है, वो ये नहीं करेगा कि आपको इनपुट डिमांड आ रही 150 की और वो 150 पूरा रन कर रहा है। वो बस उतना ही रन करेगा जितनी तक की आपकी डिमांड वहाँ पे या आपके पास में अवेलेबल एसेट्स है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए। जैसे कि कंपोनेंट्स वगैरह जो मेंटेन करते हैं वो चीज़ अवेलेबल है। तो उसके बाद में आता है वैल्यू फॉर इनफाइनाइट कवरेज। तो इनफाइनाइट कवरेज में ये सब चीज़ इनफाइनाइट में यूज़ की जाती है। तो इसमें आपको प्रिसीजन वैल्यू दिखा रहा है यहाँ पे 9999999। ओके, तो यहाँ पे कितनी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन ये हाईएस्ट वैल्यू है। ये वन प्रिसीजन के ऊपर में वैल्यूज़ नहीं आनी चाहिए। ये आईबीवी का सिस्टम ये जो वैल्यूज़ हैं इसके अंदर की जो वैल्यूज़ होगी उसे डिटेक्ट करेगा। अदरवाइज इस वैल्यू को सुपरसीड करी हुई कोई वैल्यू तो वो डिटेक्ट नहीं करने वाला। ओके, देन कैरी ओवर नेगेटिव प्रोजेक्ट स्टॉक। अब नेगेटिव प्रोजेक्ट स्टॉक क्या होता है, प्रोजेक्ट स्टॉक में क्या होता है कि सपोज आपके पास में, वो मैं आपको बता दूंगा, एक्सेल में बताऊंगा आपको नेगेटिव स्टॉक। नेगेटिव स्टॉक का मतलब होता है कुछ जो स्टॉक है वो नेगेटिव में चले गए हैं। स्टॉक आपके पास अवेलेबल नहीं है लेकिन वो स्टॉक नेगेटिव में दिखा रहा है। जैसे आपके पास में देखे होंगे ना, आपकी जीपे अकाउंट में या जो भी आपका ऑनलाइन अकाउंट है, आपने एक्सेसिव पेमेंट कर दिया तो होता क्या है कि उतनी अमाउंट्स आपके पास में है नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ रेंटल्स हमको पे करने रहते हैं, कुछ करने रहते हैं, और सफिशिएंट बैलेंस अगर हम मेंटेन नहीं करते अपने अकाउंट में, तो वो बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है। ओके, तो जैसे वो नेगेटिव में जाता है उसी प्रकार से यहाँ पे स्टॉक भी नेगेटिव में जाता है। जितने अवेलेबल नहीं है उतना यूटिलाइजेशन हो रहा है।
तो वो जो नेगेटिव स्टॉक रहता है उसको कैरी फॉरवर्ड करता है, लेकिन ये भी डेड एंड लेवल के लिए है, नॉर्मल लेवल के लिए है। देन रिसिप्ट बैलेंसिंग पॉलिसी, अब इसमें से कोई भी चीज़ तो मैं अभी तो नहीं बता सकता। रिसिप्ट बैलेंसिंग पॉलिसी में आपके पास में रिसिप्ट रहते हैं, वो बैलेंस का निकले रहता है, लेकिन ये मीडिएटर लेवल पे नहीं है कुछ भी चीज़। तो ये जैसा है उसी तरीके से हम परफॉर्म करेंगे, जस्ट सप्लाई हम लोग परफॉर्म करेंगे इसमें, क्योंकि ये साइजिंग वाइजिंग का ये बहुत बड़े बड़े एस्पेक्ट हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा लगेगा आपको फ्रेम करने के लिए। ओके, अब आप जाइए मास्टर डेटा पे। अब इसमें क्या, लोकेशन प्रोडक्ट ये सब तो मेंटेन है, लोकेशन भी मेंटेन है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लोकेशन भी मेंटेन है, जो मेंटेन नहीं है वो देखो। जो आपने सप्लाई चेन बनाया था उसके लिए होंगे ना वो मास्टर डेटा जो मेंटेन है, जो सप्लाई जी चेन सही बनाया है। है क्या? ये वही है। नहीं नहीं नहीं, सप्लाई चेन मास्टर की डेटा उसी उसी सप्लाई चेन की है। बस इतना ही मास्टर डेटा मेंटेन किया था आपने? नहीं, मैंने नीचे मेंटेन किया मैम। अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना मेरे पास कुछ मेरे को डमीज मुझे देखने पड़ेंगे, क्योंकि डेटा बहुत सारा डालना पड़ेगा उसमें। मैं एक बार चेकआउट करता हूँ कि मास्टर डेटा में और कौन सी चीज़ें फीड करनी है, ठीक है? ओके। मैं कल आपको प्रोवाइड करता हूँ जी। ओके। कल हम लोग मास्टर डेटा कॉन्फ़िगर करेंगे और सप्लाई को रन कर लेंगे। सप्लाई का बस इतना ही पार्ट है, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या पूछे जाएंगे मैं वो चीज़ बता रहा हूँ। सप्लाई में आपको पूछा जाएगा कि सप्लाई की कितने पैटर्न्स होते हैं, ह्यूरिस्टिक, ओके, कितने होते हैं। ओके। अभी जितना मैंने बताया हूँ आपको, सप्लाई में क्या क्या चीज़ें होती है आपके पास में, क्या क्या अवेलेबल होता है सप्लाई में। एल्गोरिदम कौन से हैं अपने पास? ह्यूरिस्टिक्स, ह्यूरिस्टिक्स। ओके। उसको इनफाइनाइट और फाइनाइट। फाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट। इट्स ओके। I heard it infinite or finite. It हाँ sound actually. हाँ, नहीं इनफाइनाइट का मतलब यही होता है कि इनफाइनाइट में यू आर गोइंग टू चेक फॉर द फुल कैपेसिटी, ओके, Okay. विदाउट कंसिडरिंग एनी कॉन्स्टेंट्स और पैरामीटर, जो कॉन्स्टेंट इज सिनोनिमस टू पैरामीटर्स, ओके। ये Okay. जो आपको यहाँ पे कस्टमर सोर्स, रिसिप्ट बैलेंसिंग स्कोप, कस्टमर सोर्स, इनवैलिड ऑफ, ये सब है ना, ये सब पैरामीटर्स होते हैं, गॉट इट। Okay. ये Okay. सब पैरामीटर्स मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ उसमें कौन सा, क्योंकि रन करना ये हेडेक है, ठीक है। मैं बताऊँगा कौन से डेटा मेंटेन करने हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से। और फाइनेट में क्या होगा, फाइनेट में आप ये जो कस्टमर सोर्स, रिसिप्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें, ये सब मेंटेन करेंगे। और आपका जो फाइनेट रन होगा वो कैसे रन होगा, वो रियल टाइम बेसिस पे रन होगा, और वो डिटेक्ट करके रन करेगा। अगर आपके हाथ में 20 रुपये हैं तो 20 रुपये को कंसिडर करके रन करेगा, ओके। ऐसा नहीं कि आपको इनपुट डिमांड जो आई है 150 की, और 150 का 50 पूरा उसने रन कर दिया और रिसिप्ट तैयार कर दिया, ऐसा नहीं होगा, गॉट इट। Okay. वो पहले 20 को आपको वो देखेगा कि नहीं, करंटली तो हमारे जो अकाउंट में 20 रुपये ही अवेलेबल है, तो इट विल मेक अ वाइज यूटिलाइजेशन ऑफ दैट 20 रुपीज़, एंड आफ्टरवर्ड्स देन लाइकवाइज ही विल format those data. And if suppose that particular 20 rupee is not sufficient in order to perform any production, so it will get stopped at that particular time and your supply is not going to get generated, okay। आपका कुछ भी आउटपुट नहीं निकलने वाला, ओके। तो मैं ये जो, हाँ बोलिए। तो सर व्हाट इज ऑप्टिमाइजर? बिकॉज ऑप्टी आपने हाँ हाँ मुझे हाँ, तो वर्ड वही यूज वही किया था। वही वही हाँ हाँ। ऑप्टिमाइज़र का मतलब वही होता है जो हम पैरामीटर मेंटेन कर रहे हैं, दैट इज़ अ ऑप्टिमाइज़र। जो ह्यूरिस्टिक आप परफॉर्म कर रहे हैं, फाइनाइट ह्यूरिस्टिक इज अ ऑप्टिमाइज़र, गॉट इट। ओके। जो ये जो ऑप्टिमाइज़र हम बोल रहे हैं ना, फाइनाइट, यस, जो फाइनाइट ह्यूरिस्टिक हम कर रहे हैं, हाँ, दैट्स एन ऑप्टिमाइजर। दैट्स अ, ये दैट्स योर व्हाट, योर ऑप्टिमाइज़र, इसे आप ओके। ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और जो फुल कैपेसिटी आप जब रन करते हैं वो क्या होता है आपका, कैपेसिटी, वो होता है आपका इनफाइनाइट प्लानिंग, इनफाइनाइट। विदाउट शॉर्टेज वाला जो था ना वो वाला, ठीक है, वो जी। चीज़, ओके।
उसमें से हम लोग दो ही रन करेंगे, एक है इनफाइनाइट विदाउट शॉर्टेज और फाइनाइट हेरिस्टिक। ओके, पहले इनफाइनाइट, कभी Okay. भी पहले इनफाइनाइट रन किया जाता है, फिर बेस्ड ऑन दैट इनफाइनाइट डेटा हम लोग फाइनाइट भी रन करते हैं। ओके, Okay. तो ये रेस्ट ऑफ द थिंग कल हम करेंगे। राइट नाउ अगर आपको ये डेटा चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, कल या परसों तक के तो वैसे ही कंप्लीट होने वाला है। जो एंडिंग सेशन रहेगा, एंडिंग सेशन में मैं आपको जितने भी अवेलेबल हैं यहाँ पे आर्टिकुलेट्स मेरे Okay. पास में, मैं वो सब चीज़ें प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, सब मेल कर दूँगा मैं Okay, sir. आपको। ओके, ओके मैम, थैंक यू फॉर टुडे। Thank you, sir.